Hello students, welcome back to my lectures of class 11 physics. Here in the previous lecture we have studied about the fundamental units. Okay, so here in this chapter of units and measurements, the next topic we will see is some more physical quantities and their units. So here we have another unit, that is the kilogram, and kilogram is the unit of mass. So first of all, what this mass is? This mass is the quantity of matter contained in the body. एक body के अंदर कितना matter उसके अंदर contained होता है, that is called as its mass, and this mass can never be equals to zero. You might have studied this difference in class 9th, the difference between mass and weight. This mass can never be equals to zero because the quantity of matter किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो जीरो कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए मास भी जीरो नहीं होगा. What will be its unit? Its unit will be equals to kilogram. Now how to define this kilogram? Like in case of length, लेंथ को हमने किस तरह से डिफाइन किया था? इट वॉज इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 points मार्क्ड ऑन दी प्लेटिनम इरिडियम रॉड विच इज केप्ट एट दी सर्व्स नियर पेरिस, दैट इज ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जहां पे रखा हुआ था. नाउ इन द सेम वे वी कैन आल्सो डिफाइन दी मास. मास भी क्या है? एक वहां पर एक वेट है दैट इज ऑफ 1 kg मास, वो भी प्लैटिनम इरिडियम का ही बना हुआ था एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. अब हम जो भी दूसरे मासेस को क्रिएट करते हैं वो हमेशा उससे कंपेयर करके ही क्रिएट करते हैं. बट इन द लास्ट ईयर दिस यूनिट हैज बीन मॉडिफाइड इन सम स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ मास. जैसा कि हमने देखा था यूनिट्स ऑफ लेंथ, इवन वी हैव सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ मास. द फर्स्ट वन इज द टन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द metric ton. 1 ton or 1 metric ton is equals to 1000 kg. 1 quintal, that is equals to 100 kg. 1 slug, that is equals to 14.57 kg. 1 lb, this is called as pound. 1 pound is equals to 0.4536 kg or 453 gram. Okay, 1 CSL, it's a very bigger unit. जब हमको बहुत बड़ा मास मेजर करना हो तब हम यूज करते हैं CSL, that is called as Chandrasekhar limit, and this 1 CSL is equals to 1.4 times the mass of sun. That is very biggest unit which is given by the Indian scientists, and that is called as the Chandrasekhar limit. Now for very small masses, जब मास बहुत ज्यादा छोटा हो तब उसको कैसे मेजर करेंगे? The first one is that unit will be AMU, that is called as atomic mass unit, and that is equals to 1.66 into 10⁻⁻27 kg, and also 1 carat, that is equals to 200 milligram. This carat, that is the smaller unit, that is 200 milligram. Now you might be confused with this carat, and one more carat you might have been used, that is for the purity of the gold, but its spelling is KARAT, that is to check the fineness of the gold, and this carat is equals to 200 milligram, that is for the small masses. This is all about the masses. So after saying the length and the mass, now we have another physical quantity that is called as the time. Its unit is second. Now first of all, what actually this time is? The time is any phenomena that repeats itself regularly serves as the measurement of time. मतलब जो भी ऐसा फिनोमिना जो बार बार रिपीट हो रहा है हम उसको यूज कर सकते हैं टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी आर व्हेन सन राइजेस एंड देन इट सेट्स, तो वहां पर दोनों का जो टाइम है वो हम मेजर कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से लेकर सुबह से लेकर शाम तक का एक टाइम होगा, एंड दिस थिंग अगेन रिपीट्स इटसेल्फ, तो हम उसको एक टाइम का मेजरमेंट करने का तरीका बना सकते हैं. ओके, सो वट एवर द फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ, वो क्या हो जाएगा, हम उससे टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम? फर्स्ट वन इज सोलर डे. इसको हम जनरली डे कहते हैं. इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन. मतलब सन के रेस्पेक्ट में अगर जो अर्थ है वो उसी की एक्सिस पे कितना एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज दी डे, और यू कैन से टू बी अ सोलर डे. नेक्स्ट इज sidereal day. Now it is the time taken by the earth to complete one rotation about its axis with respect to a fixed star. मतलब अदर देन द सन कोई भी दूसरा स्टार है अगर उसके रेस्पेक्ट में जो अर्थ एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज दी sidereal day. Okay, now next is solar year or simply year. The time taken by the earth to complete one revolution around the sun in its orbit. इससे पहले क्या देखा था हमने, रोटेशन उसी खुद की एक्सिस पर, वो हमारे पास एक पर्टिकुलर डे होगा. लेकिन अगर वो जो सन है अगर वो सन के आसपास अर्थ अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज द सोलर ईयर और सिंपली एन ईयर. नाउ हियर वी हैव 1 सोलर ईयर इज इक्वल्स टू 365.25 सोलर डेज. लेकिन इसी को अगर हम साइडरियल डेज से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 1 डे यहाँ पर
बढ़ जाएगा. एंड यू नो दिस बिकॉज ऑफ 0.25 हमारे पास लीप ईयर आ जाता है. व्हाट इज दिस लीप ईयर? इज दिस द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4. मतलब यहाँ पर 25 मिला के जो 0.25 है वो 4 बार में मिलकर 1 हो जाएगा, और वहां पर जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 366. और उस केस में जो फरवरी में है वो 1 डे बढ़ जाएगा. दिस ईयर 2020 वी आर सेइंग इट वाज द लीप ईयर. व्हाट अबाउट ट्रॉपिकल ईयर? द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर एक्लिप्स. मतलब जिस भी ईयर में टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, दैट पर्टिकुलर ईयर विल बी कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल ईयर. नाउ व्हाट अबाउट द लूनर मंथ? टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. मतलब चांद को एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में अर्थ के आसपास कितना टाइम लगता है, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज लूनर मंथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू 27.3 days. Now here we have one more unit that is called as shake, and that one shake is equals to 10 to the power minus 8 seconds, जिसको हम जनरली बोलते हैं पल. That pulse is introduced by the Indian scientists, and that is called as the shake. So one shake is equals to 10 to the power minus 8 seconds. Here we have some more fundamental physical quantities. The first one is the electric current. Now what this electric current is? It is the time rate of flow of charge. Class 10th में आपने पढ़ा होगा I is equals to Q by T, the rate of flow of charge. इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर. बट जनरली जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है इसकी वो क्या होती है कि हमारे पास 2 इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं जिनका नेग्लिजिबल एरिया है. उन दोनों के अंदर करंट 1 एम्पियर होगा. कब होगा? जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर. और अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर 2 × 10 to the power minus 7 न्यूटन का अगर फोर्स लगाते हैं तो उस केस में दोनों के अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा. दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर विच यू विल स्टडी फर्दर इन क्लास 12th. So what this is? It is the current maintained in 2 conductors, each of infinite length and negligible area, held at 1 meter apart in vacuum, produces a force of 2 × 10 to the power minus 7 Newton per meter between them. अगर इतना फोर्स होगा तब क्या होगा कि वो जो 2 कंडक्टर्स के अंदर करंट है वो कितना कहलाएगा? That will be called as the 1 ampere current. Okay, now the next is temperature. The measurement of degree of hotness or coldness of a body, and its unit is Kelvin. यहाँ पर क्लास 11th में हमारे पास 2 चैप्टर हैं that relates with the temperature. The first one is the thermal properties of matter and the second will be thermodynamics. तो वहाँ पर टेम्परेचर के बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे. Okay, the next is the luminous intensity, the amount of light emitting from a point source within a solid angle of 1 stay radian. इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला. मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक सोर्स है और ये जो सोर्स है इट इज एमिटिंग आउट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, लेकिन हम क्या करेंगे? एक सॉलिड एंगल कंसीडर करेंगे. कितना? दैट इज ऑफ 1 स्टे रेडियन. और वो 1 स्टे रेडियन के एरिया में यहाँ पर जितनी भी लाइट एमिट करता है दैट विल बी कॉल्ड एज द 1 कैंडेला. ओके, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द ल्यूमिनस intensity. Okay, the next is the quantity of matter, that is the amount of substance contained in any body. लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि it is the amount of substance which contains as many as elementary entities. यहाँ पर जो elementary entities है that can be atoms, that can be ions or that can be molecules, they are the elementary entities. As there are atoms in 0.012 kg of pure carbon C12 isotope. मतलब इतने kg जो कार्बन आइसोटोप है C12 उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज दी 1 मोल. ओके, और यहाँ पर 1 मोल कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू 6.023 × 10⁻23 एटम्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द सप्लीमेंट्री यूनिट्स. थैंक यू.